Okay, good morning, all. Let's start with the lesson. Um, See, today I will continue with the NetBeans Java, the portion that we left over before exams. So, we have covered some basic things regarding Java, how to create a small sort of GUI forms. And now we'll cover up some more applications that we can use and access in Java. We have done arrays last time, that arrays can be useful if you want to utilize a number of values of the similar data type, multiple values, 100, 200 values in a similar of similar data type. And if you want to use such things, then it's always preferable to use arrays. And today we are going to do the concepts of user defined functions. अब पहली चीज़ क्या है, हमने फंक्शंस और मेथड्स कुछ किए हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. We know that in Java that most of the functions that we use, they are all ready made, like set text method is there, get text method is there, set editable, set enabled, set visible, is enabled. So all these are ready made, we just have to use them, right? And every method has some specific use, like set text is used for printing, get text is used to for getting a value from any control. So similarly, if in case I want to create my own method that should perform in whatever instructions I write there in my way, right? So we can also do that. So we can create a small sort of function which can perform the task as per the instructions given by the programmer, right? अब ये करते कैसे हैं और क्यों करते हैं? पहली चीज़ तो यह है कि फंक्शंस मेथड्स को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? The most important thing is that these methods, see, sometimes when we form a program, जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्रोग्राम में कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस कई बार आती हैं जो रेपिटेशन में हो, राइट? यू वांट दोज इंस्ट्रक्शंस टू रन मल्टीपल टाइम्स, राइट? सो वी हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट इन दैट केस. कैसे करना है? एक तरीका तो ये है कि आपको सारी इंस्ट्रक्शंस बार बार लिखनी है. दूसरा ये है कि आप उसको किसी लूप में डाल लो, लूप को चलाओ, राइट? और उसमें ये होता है कि अगर मान लो प्रोग्राम बहुत बड़ा है, जैसे मान लो कि यू कैर क्रिएटिंग सम बिग एप्लीकेशन, तो इन दैट केस हैंडलिंग दीज लूप्स इज़ ऑल्सो अ डिफ़िकल्ट टास्क. ठीक है, बहुत सारे लूप्स होंगे, उनको हम हैंडल कैसे करेंगे? सो हम क्या करते हैं कि हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस को अलग से ब्लॉक में रख देते हैं, राइट? सो अलग से ब्लॉक में रखने से हो गया सेपरेशन हो जाती है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ये ब्लॉक जो है ये हमें ये कुछ काम करके दे रहा है, राइट? सो ये अलग से ब्लॉक कैसे बनते हैं? ये अलग से ब्लॉक जो है वो फंक्शन या मेथड्स होते हैं. सो हम जो इंस्ट्रक्शंस हमें हमें बार बार चाहिए, हम उन सबको उठा के किसी एक अलग ब्लॉक में रख देंगे. दैट ब्लॉक विल बी कॉल्ड एज ए मेथड. whenever we need it, we'll just write one instructions and we'll pass the value to that function, that method. वो हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा. That's the use of functions and methods in all programming languages. It's a very good concept, a very important concept, right? So let's just move on to the book and just go through what all important things we should know about that. Okay, so ये है, यहाँ से है user defined methods. A method is a block of statement grouped together to perform some specific task. If you want to do some specific task, then we can group some statements together into a block, और उसको हम method बोलते हैं. अब जब भी मेथड बनाते हैं उसमें कुछ उसके जो सिंटैक्स है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे वी हैव टू राइट द रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप मतलब कि वो मेथड हमें किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर करेगा, फ्लोट करेगा, डबल करेगा, स्ट्रिंग करेगा या नहीं करेगा. तो दैट वी हैव टू स्पेसिफाई इन द बिगिनिंग. उसके बाद हम मेथड का नाम लिखते हैं. जो भी मेथड आप बना रहे हैं उसका कोई वन नेम यू हैव टू गिव, एनी नेम यू कैन गिव. And then we have to specify the parameters that we want to use inside that method, and those parameters are separated by commas, right? So parameters का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं दो वैल्यूज़ हमेशा पास करूँ, और वो उन दोनों वैल्यूज़ को लेंथ और ब्रेड्थ कंसिडर करें,
और हमें मल्टीप्लाई करके एरिया जो है वो रिटर्न करता जाए, राइट। सो आई वांट अ मेथड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल लेट्स से। तो मुझे दो वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। दो वैल्यूज़ पास करने के लिए मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए जहाँ पे मैं वैल्यू स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे हम वो दो वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे विद देयर डेटा टाइप्स। ठीक है, मान लो एक एक्स ले लिया, एक्स कॉमा वाई वी कैन राइट। और डेटा टाइप्स भी लिखने होते हैं कि एक्स में क्या वैल्यू आएगी, जैसे डबल एक्स डॉट डबल एक्स कॉमा डबल वाई, या डबल एल कॉमा डबल बी, राइट, या इंट एक्स कॉमा इंट वाई, राइट। सो पैरामीटर्स वी हैव टू स्पेसिफाई हियर इन द ब्रैकेट। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगानी है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करनी है। इसके बीच में हमने वो स्टेटमेंट्स लिखनी है जो कैलकुलेट करेंगी। जैसा हमारा एग्जांपल था कि लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है। सो वी नीड वेरिएबल टू स्टोर दैट एरिया। हम एरिया नाम का एक वेरिएबल लेके इस इक्वल टू एल इंटू बी कर देंगे, तो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई होकर एरिया में स्टोर हो जाएंगी। और फिर उस एरिया को हमें रिटर्न करना है, राइट। सो रिटर्न करने के लिए वी नीड टू राइट दिस रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट सिंपल होती है, रिटर्न लिख के जिस चीज़ को रिटर्न करना है, एरिया रिटर्न करना है, तो एरिया का जो भी वेरिएबल हमने लिया, ए या एरिया जो भी है, दैट यू हैव टू राइट हियर। सो व्हाट हैपन्स हियर इज कि यहाँ से प्रोग्राम में जब भी कंट्रोल यहाँ आएगा तो दो वैल्यूज़ पास होंगी। उन दो वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स रखेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक नए वेरिएबल में डालेंगे, फिर उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये इस मेथड का काम है, राइट। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक मैं बाद में समझाता हूँ क्या है। ये आ गया रिटर्न टाइप के आंसर हमें डबल टाइप रिटर्न होगा। डबल मीन्स वेयर डेसिमल वैल्यूज कैन ऑल्सो बी यूज्ड। हमने इस मेथड का नाम रखा है रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया, राइट। और पैरामीटर्स एक लिया है लेंथ, एक लिया है ब्रेड्थ। दोनों डबल टाइप ले लें क्योंकि हो सकता है लेंथ ब्रेड्थ डेसिमल्स में हो। डेटा टाइप इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू आर गोइंग टू मेक द प्रोग्राम। यू कैन टेक इंट ऑल्सो, फ्लोट ऑल्सो, डबल ऑल्सो, वट। ठीक है। तो इस मेथड में इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी इस मेथड को कॉल होगा देन टू वैल्यूज़ विल बी पास्ड। एक वैल्यू लेंथ में आएगी, जो भी पहली वैल्यू लिखी होगी वो लेंथ में जाएगी, दूसरी वैल्यू ब्रेड्थ में जाएगी। और हमने यहाँ क्या किया, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आ रहा है उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। दिस कैन बी रिटन इन टू वेज, आइदर वी टेक ए वेरिएबल हेयर, यहाँ पे आप डबल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो और रिटर्न एरिया कर दो, या सीधा रिटर्न स्टेटमेंट में भी हम मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर सकते हैं, right? So this return statement will return the value after multiplying these two variables, and whatever answer comes it is returned back। और return होके कहाँ जाता है, जहाँ से इस मेथड को वैल्यू पास हुई। ठीक है, अब वो चीज़ समझते हैं कि ये वैल्यू पास कैसे करनी है और रिटर्न कैसे होगी। स्ट्रेट अवे कम टू, हाँ ये है प्रोग्राम। यू कैन सी दिस इज हाउ द प्रोग्राम इज टू बी रिटन। ये एक क्लास बनी है, पब्लिक क्लास, मेथड डेमो नाम की क्लास है, उसके अंदर हम सारी कोडिंग कर रहे हैं। ये दिस इज द मेथड दैट वी हैव क्रिएटेड, स्टैटिक डबल रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया डबल लेंथ कॉमा डबल ब्रेड्थ। तो ये वही स्टेटमेंट है जो ऊपर थी, रिटर्न लेंथ स्टार ब्रेड्थ। तो ये रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया नाम का एक मेथड बना, इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो वेरिएबल्स हैं डबल टाइप। और जब भी इसको वैल्यू पास होगी वो लेंथ और ब्रेड्थ को कॉपी करेगा, लेंथ और ब्रेड्थ में वो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी और रिटर्न हो जाएंगी। अब देखो प्रोग्राम कैसे रन होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे सबसे पहले मेन मेथड रन होगा, राइट। दिस इज द मेन मेथड फ्रॉम वेयर द कंपाइलेशन स्टार्ट्स, राइट। सो दिस यू हैव टू राइट ऑल इंस्ट्रक्शंस वी जनरली राइट हियर। मेथड मेन मेथड से बाहर होते हैं, मेन मेथड आपका मेन है जहाँ से कंपाइलेशन स्टार्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट तो सब में कॉमन आती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में देन स्ट्रिंग args। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है a, उसको हमने डबल डिक्लेयर किया है बिकॉज वी आर डीलिंग विद डबल वैल्यूज ओनली। इनिशियल कर दिया उसको 0, राइट, उसमें इनिशियली 0 है। फिर दिस स्टेटमेंट ओवर हेयर, दिस इज द कॉलिंग स्टेटमेंट, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव रिटन a इज इक्वल टू रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया
45.5 कॉमा 78.5, ये है कॉलिंग स्टेटमेंट। कॉलिंग मतलब यहाँ से हम वैल्यू पास ऑन कर रहे हैं मेथड को। अब ये कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नाम क्या है, रेक्टेंगल अंडरस्कोर एरिया। नाउ दिस नेम इज द नेम ऑफ द मेथड दैट वी हैव क्रिएटेड, right? So that means what we are doing over here in this portion of the statement is passing on these two values 45.5 and 78.5 to this method। तो ये दो पैरामीटर्स जो हैं, ये दो वैल्यूज जो हैं इस मेथड को पास ऑन हो रहे हैं, वी आर कॉलिंग दैट। तो ये 45.5, ये जब भी ये स्टेटमेंट आएगी आप विल जंप ओवर टू दिस मेथड। यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी 45.5 दैट विल गो टू लेंथ, 78.5 विल गो टू ब्रेड्थ, और इस मेथड में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, और जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो भी इसका आंसर है वो रिटर्न होके वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, विल रिटर्न बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव जंप्ड। सो इसका मतलब जो आंसर आया मल्टीप्लाई करने के बाद, दैट विल कम हेयर एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल ए, वो इस ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन सिंपली यू नीड टू राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। तो उसके लिए आपने प्रिंट स्टेटमेंट डाल दी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ मेथड। ठीक है, मेन मेथड से हमने शुरू किया, उसमें हमने मेथड को कॉल किया। मेथड कॉल करने के बाद यहाँ से हम जंप करेंगे मेथड के पास, जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स पास ऑन होंगी, उस पैरामीटर्स की कैलकुलेशंस होंगी, और जब रिटर्न स्टेटमेंट आएगी हम वापस आ जाएंगे, और जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर वैल्यूज़ पास ऑन की गई वापस के लिए, वो वापस यहाँ पे ए को असाइन हो जाएगी। देन वी कैन प्रिंट दैट वैल्यू ए, राइट? So this is how a method works. This is the basic working of a method. Fine. So finally when you run the file, you will get this line as an output, area of rectangle is equal to जो वहाँ से रिटर्न हुआ। रिटर्न क्या हुआ, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू है दैट विल बी द आउटपुट, राइट? Now let's see this on I have made this program। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोग्राम अभी। See, so you can see this is the program। मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि हमें ये कोडिंग करनी कैसे है। ठीक है, हमने जब एप्लीकेशंस, मैं शुरू से बताता हूँ। देखो, व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट लाइक दिस, यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट बटन। नया प्रोजेक्ट यहाँ से बना लिया, जैसे हम नॉर्मली बनाते थे पहले। जावा एप्लीकेशन लेके नेक्स्ट लिया, प्रोजेक्ट का नाम लिखा, फिनिश कर दिया, प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सो लाइक दिस इज द प्रोजेक्ट विच इज मेड। आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट यू हैव टू क्रिएट अ फाइल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ। हम लोग जब फॉर्म्स बनाते थे तो हम लिखते थे जे फ्रेम फॉर्म। ठीक है, जो हमने पहले किए थे एग्जांपल्स फॉर्म्स के लिए ना, वी क्रिएट अ फॉर्म जिस पे हम बटन्स, लेबल्स और रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस जैसे कंट्रोल्स लगाते थे। फॉर दैट वी क्रिएट दिस जे फ्रेम फॉर्म। बट फॉर डूइंग दिस क्लास एंड अदर थिंग्स वी नीड टू क्रिएट ए क्लास। तो हम जावा क्लास पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, राइट? So we have to create a class, write the name of the class over here, कोई भी नाम दे सकते हैं आप क्लास का, और फिनिश पे क्लिक कर दो, ये क्लास क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे I'll give the name new class 2, I'll click finish, it will create a class and ये आपकी क्लास बन गई। अब आपको कोडिंग करनी है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, दैट्स इट। फाइन, सो I have done it already, so just let's see this कि कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एरिया नाम का एक मेथड बनाया है, स्टैटिक डबल डेटा टाइप रिटर्न करेगा, और डबल एल और डबल बी दो वेरिएबल्स लिए हैं, एल फॉर लेंथ, बी फॉर बी। सेम प्रोग्राम है, बस आई हैव चेंज द वेरिएबल नेम, दैट्स इट। और रिटर्न एल इंटू बी कर दिया, ये मेन मेथड लिखा।
मेन मेथड में एक वेरिएबल लिया है a. I have not initialized this as 0 because we are not using it directly, so I'm simply writing double a. Double a is equal to 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा. A is equal to area 1520. Now this is the calling method. यहाँ से हम मेथड को कॉल कर रहे हैं. इस एरिया नाम के मेथड को कॉल किया. 15 और 20 दो वैल्यूज हमने पास ऑन की. तो यहाँ से कंट्रोल आएगा. यहाँ पे L की वैल्यू 15 हो जाएगी, B की वैल्यू 20 हो जाएगी. यहाँ पे 15 इंटू 20 किया 300. रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न से हम वापस यहीं आ गए और 300 असाइन हो जाएगा A को. राइट. सो देन we have done this print statement where we are printing the value of A. A is what? A is the product of both the numbers. Right. So when you run this file, you'll see the output will be area of rectangle is 300. You can see this. This is the output. राइट. सो ये है मेथड्स का काम, मेथड्स क्रिएट करने का तरीका. अब इसमें काफ़ी वेरिएशंस होती हैं, बट विल ओनली डू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर देयर इन आवर सिलेबस, ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस. राइट. सो लाइक देयर आर टू वेज ऑफ कॉलिंग. ये कॉल करने के भी दो तरीके होते हैं. फिर उसके बाद ये स्टैटिक, पब्लिक, ये सब कीवर्ड्स हम आगे करेंगे कुछ चीज़ें इनसे रिलेटेड. राइट. तो ये बेसिक तरीका है एक फंक्शन क्रिएट करने का. और रिमेंबर फंक्शन तभी वर्क करता है जब हम उसको वैल्यू पास करेंगे, तो हमें मेन मेथड भी साथ में क्रिएट करना पड़ेगा. फाइन. दैट वी हैव टू क्रिएट इट. चलो लेट्स मूव फर्दर. Okay, moving on to the next thing. Next we have concepts of object oriented programming. Now see, हमने क्लासेस का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझा है. अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे उसके. Classes and objects, these are two features which are used in object oriented programming concept. अब ये पहली चीज़, ये object oriented programming है क्या? Right. Before we do this, I'll just tell you what is the difference between this object oriented programming as well as the procedural programming जो पहले थी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से जो पहले कंसेप्ट था, प्रोसीजरल मतलब जो पुराना वाला था. अब प्रोसीजरल कंसेप्ट में क्या होता था, जो जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, उसमें द डेटा इज केप्ट ओपन इन द सेंटर. डेटा इन द सेंस जैसे हम लोग अभी कर रहे थे ना, वो क्रिएट कर रहे थे वेरिएबल्स एक्स वाई एंड ऑल दोस. दीज एक्स वाई वेरिएबल्स वट एवर वैल्यूज दे आर स्टोरिंग, दैट इज डेटा. राइट. ये वेरिएबल्स जो हैं ये सब डेटाज ही हैं. तो ये डेटा जो है वो ओपन होता था. ओपन इन द सेंस दैट डेटा लाइज इन वन फाइल, and in case one method want to use the file, it can directly go and use that file, can directly, the data is directly accessible to all the methods. उसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो किसी एक मेथड ने डेटा को चेंज कर दिया. ठीक है. डेटा की वैल्यूज अपडेट होकर दी, तो वो अपडेटेड वैल्यूज विल बी, नाउ इट इज अपडेटेड फॉर एवरी अदर मेथड. तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है? डेटा इज नॉट सो सिक्योर. राइट. एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा इज टू ऑल. कोई भी डेटा चेंज कर सकता है, कोई भी डेटा को मॉडिफाई कर सकता है. बट द प्रॉब्लम लाइज इज दैट डेटा इज अ बिट इनसिक्योर इन ऑल ओल्डर काइंड ऑफ लैंग्वेजेस. सो नाउ व्हाट वी पीपल आर यूजिंग इज दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्लासेस बनाते हैं. क्लासेस बनाने के बाद क्या होता है कि हर क्लास के अंदर अपने डेटा मेंबर्स होते हैं और उसके अपने मेथड्स होते हैं. ठीक है. और हम लोग जो डेटा का एक्सेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल द एक्सेस यूजिंग सर्टेन स्टेटमेंट्स कि ये डेटा जो है अभी ओपन नहीं है. डेटा इन केस one class has some data and that class want to use the data of some other class, then we have to write some instructions in between so that it can be done. तो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं हो सकता है. डायरेक्ट आपका डेटा एक तरह से सिक्योर हो जाता है. ठीक है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि क्लासेस में
डेटा इज बाउंडेड इनटू वन स्मॉल ऑब्जेक्ट, इट इज एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा को बाउंड कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज डेटा इनकैप्सुलेशन, right? Encapsulation means wrapping up of the data and member methods into one small unit called as an object. एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम डेटा और मेंबर्स मेथड्स को रैप करके एक जगह पे रखते हैं ताकि उस डेटा को सिक्योरिटी मिले, राइट? सो दोज मेंबर्स कैन एक्सेस दैट डेटा, and if some outside method want to access that data, then it has to go through some instructions. There is a way of doing it, right? Only permissions can be given. If permissions can be given, and only then the data is accessible, otherwise not, right? So ये एक बहुत अच्छा concept है object oriented programming का. So as we discussed that in Java also we follow this object oriented programming concept. So यहाँ पे हम classes बनाते हैं, ठीक है। अब एक classes का concept क्या है? Now in Java we program is collection of different objects, right? The objects are what that interacts with the problem, right? So हम एक example लेते हैं, जैसे मान लो you want to create a database application for bookstore, right? You want to create an application, एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें हम एक बुक स्टोर की सारी डिटेल्स को रख सकें, क्रिएट कर सकें, राइट? सो now you need to store data about all the books in the store. जितनी बुक्स हैं स्टोर्स की, सबका डेटा हमें चाहिए रखना है कहीं ना कहीं पे, राइट? एवरी बुक विल बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम, और जितनी बुक्स हैं वो सारी क्या हो जाएंगी? ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाएंगे, टेक्निकली स्पीकिंग हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर हम कुछ मेंबर्स बनाएंगे। मेंबर्स का मतलब एक हम टाइटल बना देंगे, एक हम ऑथर बना देंगे, एक हम पब्लिशर बना देंगे, एक हम प्राइस बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे। वी कैन डिफाइन वन स्ट्रक्चर इन द क्लास कि दिस दीज आर द मेंबर्स दैट दीज आर द डेटा मेंबर्स दैट वी कैन क्रिएट, राइट? सो जितनी भी बुक्स हैं तो उसके लिए ये सारी चीज़ें कॉमन होगी। एवरी बुक विल हैव टाइटल, एवरी बुक विल हैव ऑथर, एवरी बुक विल हैव पब्लिशर, एवरी बुक विल हैव प्राइस। सो फॉर डिफरेंट बुक्स वी विल क्रिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, समझ आया कंसेप्ट? लाइक जैसे क्लास बनाई हमने बुक, उसमें हमने मेंबर्स रख लिए, डेटा मेंबर्स रख लिए, एक टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जेनर, प्राइस। नाउ इफ आई पिक द फर्स्ट बुक, मैंने पहली बुक उठाई, उसका टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, जेनर और प्राइस जो है वो एंटर कर दिया, तो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस क्लास बुक का। देन आई पिक द सेकंड बुक, अगेन I'll put some values, the title, author, publisher and all these things of the second book। तो वो क्या होगा कि दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सेम क्लास का, ठीक है। सो लाइकवाइज फॉर ईच एंड एवरी बुक वी कैन क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ईच फॉर ईच एंड एवरी बुक, राइट? हर बुक का अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो डेटा मेंबर्स हैं ये हमें एक ही बार डिफाइन करने पड़ेंगे। वी हैव टू डिफाइन दीज थिंग्स ओनली वंस। देन जितनी बुक्स आती जाएंगी उतना क्या करना है? हमें सिर्फ उनकी वैल्यूज़ को एड अप करना है, दैट्स इट, right? So this concept helps us to do or manage the things very easily, right? Moreover, if you want to update something, if you want to change something, so it's easy to update into one object, right? So ये है सारा classes और object का concepts। तो class is basically what? A structure, right? It's a structure which we create depending upon the situation that we are using, and then after that every class, for every class multiple objects can be created, और उन ऑब्जेक्ट्स में हम एक्चुअल वैल्यूज को रखते हैं, ठीक है। तो क्लास में बन गया स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट्स में डाल दी हमने वैल्यूज, ठीक है। अब देखो इसमें एक और चीज़ है कि डेटा मेंबर्स के साथ साथ हम क्लास में फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड कर सकते हैं। फंक्शनैलिटीज़ मतलब इफ़ यू वांट समथिंग टू बी डन, लाइक इफ़ आई वांट टू डिस्प्ले ऑल दिस थिंग्स, मैं चाहता हूँ कि टाइटल प्रिंट करने का एक तरीका हो, ऑथर या पब्लिशर या जेनर या प्राइस, इन सब चीज़ों को प्रिंट करने का भी एक तरीका हो,
सो फॉर दैट वी कैन ऐड फंक्शनैलिटीज़। फंक्शनैलिटीज़ कैसे ऐड होंगी? मेथड्स के थ्रू आपको मेथड्स बनाने पड़ेंगे, जैसे अभी हमने किया। तो डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया जिससे हम प्रिंट कर सकते हैं। गेट प्राइस नाम का मेथड बनाया जिससे हम सिर्फ प्राइस को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम एक क्लास के अंदर बना देते हैं। तो जब भी हम इस क्लास की फर्स्ट बुक की एंट्री करेंगे तो हम उसकी ये डिटेल्स भर देंगे, और जब भी उस फर्स्ट बुक की डिटेल्स को प्रिंट करना है हम उस बुक के उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो वो सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। अगर आपको प्राइस प्रिंट करना है तो हम गेट प्राइस को क्लिक कर देंगे, तो गेट प्राइस जो प्राइस है वो प्रिंट हो जाएगा, राइट? So this is the advantage of making a class, that we can create some structure which can be common for different application, different entities, right? ये नीचे एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल वन बुक इन द लाइब्रेरी वुड बी द ऑब्जेक्ट। बुक वन उसका नाम रख दिया, उसकी डिटेल्स भर दी। ऐसे ही बुक टू दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, उसकी डिटेल्स आ गए, राइट? और जब भी हमें इनको प्रिंट करना है तो बुक वन लिख के बुक वन डॉट डिस्प्ले किया तो फर्स्ट बुक की डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी। और अगर हमने सेकंड बुक प्रिंट करनी है तो बुक टू डॉट डिस्प्ले किया तो सेकंड बुक की डिस्प्ले डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगी, राइट? सो दिस हेल्प्स अस टू मैनेज द थिंग्स इन ए बेटर वे, इन ए इजी वे, राइट? So this is all this concept about classes and objects. Fine. So ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए। और जस्ट गो थ्रू दिस एंड देन विल डेफिनेटली डू सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। ये मैं this is how we create, actually do it on computer, right? So ये क्लास के अंदर हमने वही चीज़, वही एग्जांपल लिया है। पब्लिक क्लास बुक बनाया, कर्ली ब्रैकेट से ओपन करना है। जब भी क्लास ओपन करते हैं हम तो कर्ली ब्रैकेट से ओपन करते हैं, लास्ट में उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है। ये हमने सारे मेथड्स बना दिए, मेंबर्स बना दिए। वी कॉल देम डेटा मेंबर्स। स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर, स्ट्रिंग पब्लिशर, स्ट्रिंग जेनर एंड डबल प्राइस। ये डेटा टाइप आपको वैल्यूज के हिसाब से रखने हैं। टाइटल जो है उसमें अल्फ़ाबेट्स होंगे तो स्ट्रिंग दे लिया, ऑथर इज़ ऑल्सो अल्फ़ाबेट, पब्लिशर का नाम भी वैसे ही है, जेनर का भी वैसे ही है। प्राइस के लिए आपने डबल ले लिया क्योंकि हो सकता है डेसिमल वैल्यूज़ हों। तो ये हमने 4-5 डेटा मेंबर्स बनाए। उसके बाद हमने एक डिस्प्ले मेथड बनाया। अब इस मेथड में क्या किया, हमने सारी चीज़ों को प्रिंट कर दिया। देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, टाइटल प्रिंट हो गया, देन ऑथर प्रिंट हो गया, जो यहाँ वेरिएबल्स लिए उन्हीं को प्रिंट कर दिया। तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे हम इनके अंदर वैल्यूज़ देंगे। वैल्यूज़ देने के बाद जो भी, जब भी हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डॉट डिस्प्ले, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, मैंने ये प्रोग्राम भी आज मॉर्निंग में रेडी किया था। जस्ट शो यू, जस्ट हैव ए लुक। So I have created another class book, सेम वे जैसे पहले बुक क्लास की थी क्रिएट हमने, राइट क्लिक करके यहाँ से। सो पब्लिक क्लास बुक बनाई। इसमें मैंने 3 चीज़ें ली हैं, स्ट्रिंग टाइटल, स्ट्रिंग ऑथर, डबल प्राइस, राइट? और एक मेथड बनाया है वॉइड डिस्प्ले। वॉइड क्यों लिखते हैं? वॉइड लिखने का मतलब होता है कि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, यहीं पे प्रिंट कर देगा। वॉइड लिखने का मतलब वो मेथड विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। इंट या डबल या फ्लोट लिखा होता है तो मेथड कुछ रिटर्न करता है, फिर हमें यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ेंगे और प्रिंटिंग हम यहाँ करेंगे नीचे। ठीक है, बट अगर हमने वॉइड लिखा है तो आपको प्रिंटिंग इसी के अंदर करनी है। तो मैंने डिस्प्ले मेथड प्रिंटिंग करने के लिए बनाया था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड वॉइड हियर। तो डिस्प्ले में क्या किया, मैंने तीनों चीज़ें प्रिंट कर दी हैं। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल, टाइटल इज इक्वल टू टाइटल, ऑथर इज इक्वल टू ऑथर, प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, तीनों वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये हमारी बुक नाम की क्लास बन गई, हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमने क्या करना है, इनमें वैल्यूज़ डालनी है। वैल्यूज़ कैसे डालनी है, उसका तरीका ये है, मेन मेथड के अंदर ये हमारी यहाँ पे क्लास ओवर हो गई। ये क्लास यहाँ से लेके यहाँ तक बन गई। ठीक है, क्लास इज ओवर नाउ। Now we need to create object. First object. Object is a copy. So we'll use these structures and we'll create a new copy of the
क्लास बुक। कॉपी कैसे बनानी है, मेन मेथड में आ गए। मेन मेथड में हमने लिखना है क्लास का नाम, जो भी आपने लिखा, बुक लिखा था। एक ऑब्जेक्ट का नाम रखो, कोई भी, ए बी सी डी, वट एवर यू नाम नेम डू यू वांट टू गिव। आई हैव केप्ट बी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाओ। न्यू कीवर्ड से नया ऑब्जेक्ट बनता है। और ये बुक कंस्ट्रक्टर मेथड लगाना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर मेथड वो होता है, इट्स अ मेथड यूज टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। एंड कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो जो क्लास का नाम है वही नाम लिख के, मेथड है बिकॉज, तो आपको ये राउंड ब्रैकेट्स लगानी पड़ती है। कंस्ट्रक्टर मेथड पे मैं थोड़ा बाद में आता हूँ, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा ये क्या है। सो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट। हमने नया ऑब्जेक्ट बना लिया। हमने क्या किया, बी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है। दिस बी नेम्ड ऑब्जेक्ट विल बी यूज टू गिव वैल्यूज टू दीज थ्री थिंग्स। हमने ये तीनों चीज़ों की वैल्यूज देनी है, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट वेरिएबल, टाइटल। सो हाउ विल यू गिव द वैल्यू, आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो लिख के डॉट, पहला जो वेरिएबल था बी डॉट टाइटल इज इक्वल टू, जो वैल्यू देनी है दे दो। तो टाइटल हमने दे दिया IT402, वट एवर वैल्यू यू वांट टू गिव, इट शुड बी अ स्ट्रिंग वैल्यू, अल्फाबेट्स, राइट। देन b dot author is equal to name of the author. b dot price is equal to the price that you want to give. Now this depends upon the data type you have taken. हमने यहाँ डबल लिया है तो डेसिमल वैल्यूज वाला लेना है, राइट। तो ये हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट्स में वैल्यूज डाल दी। एक कॉपी बन गई हमारी बुक नाम की क्लास की, ऑब्जेक्ट बी नाम से, और उसमें ये तीन वैल्यूज आ गई। दिस इज अ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, राइट। नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट दिस, these थ्री वैल्यूज, हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा बी और डिस्प्ले मेथड को कॉल कर दिया। बी डॉट डिस्प्ले विल स्ट्रेट अवे कम हेयर एंड ऑल द थ्री वैल्यूज विल बी प्रिंटेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी, right. So this is how we are going to um, use this, right. So ये तरीका है ऑब्जेक्ट्स बनाने का, और आपको ये चीज़ें बार बार रीयूज करने का, ठीक है। ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। दिस इज ऑल्सो वन एडवांटेज ऑफ क्लासेस दैट वी कैन रीयूज द थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये एक बुक बन गई। ऐसे ही इफ यू वांट टू create one more object, so change the name, I'll put b1 here and change the values, right. So we'll talk about b1 dot display. Now when you print this, I'll run the file, you can see the output। दो, अभी हमारी दो बुक्स की एंट्रीज हो गई हैं, दो ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं। ये आ गया टाइटल IT402 पहला, फिर उसका ऑथर, उसकी प्राइस, फिर टाइटल फिजिक्स एंड देन ऑथर अमित एंड उसका प्राइस, राइट। So this is the basic concepts of your classes and objects, how to create class, how to create objects, right. Chalo, we'll end up here now because time is running. So we'll do most of the things next time also, fine. So just go through the things, go through the book, practice these things on computers also। ये कोडिंग आप प्रैक्टिस करके देखो, कंप्यूटर्स पे आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। ट्राई करो तभी थोड़ा सी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। व्हेन यू ट्राई डू इट प्रैक्टिकली, यू विल फाइंड मोर इंटरेस्टिंग ऑल्सो, राइट। तो बस आपको लिखने का मेथड, तरीका पता होना चाहिए, देन यू कैन ईजिली डू इट, इट्स नॉट टू टफ, fine। Baki, if you have any doubt, any problems, you can call me up, you can just contact me anytime, right. So that's it from my side today. I'll just end up here.